Today we have our first woman guest on the podcast. Please join me in welcoming Dr. Upasana Arora. We would like to understand about you, your life experiences, or whatever that has not been covered in the media. कुछ साल तो मैंने घर में as a good housewife and as a mother and daughter-in-law, I played many roles. Anyhow, जो आदमी कुछ करना चाहता है वो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ कोशिशें करता है, तो मुझे ऐसा लगा health care is a place where whatever you can do, you have to do. So NABH played a very major role in my life. तो हमारा हॉस्पिटल उस एरिया का फर्स्ट हॉस्पिटल हुआ and that time was the best time of my life also. When you look back, how do you see the experiences जो शायद उस समय पे आपको setback लगे होंगे? I can see in their eyes a question mark. What she will do here? This was the thing I wanted कि she can do many things. Stairs लेके ऊपर जाते हैं. There is no lift for success. अगर हम healthcare industry को देखें, I think the participation of women in the healthcare industry is almost equal to men. Or if I'm not wrong, it's actually equal to men. Equal, rather more than men. Despite having such high participation in the overall workforce, why have women not been able to break that barrier and reach that leadership position in healthcare? Nurse, as a gynecologist, as a pediatrician, lady boss को accept करना अभी भी थोड़ा सा problem है. तो कहीं ना कहीं still अभी glass ceiling है जो हमें तोड़नी पड़ेगी और मुझे लगता है थोड़े दिनों की बात है अब तो females are doing very well. Please let us know what are the 2-3 technology that your hospital has adopted. डोजी सिस्टम यूज कर रहे हैं. गैस्ट्रो डिपार्टमेंट है. मैनोमीट्री भी आ गई. बट स्टिल आई विल टेल यू नोबडी कैन मीट दैट थिंग व्हिच इज दैट टच ऑफ अ डॉक्टर जो सर पे हाथ रख के कहता है डोंट वरी आई एम हियर. Why do you think skilling or education in healthcare has not been able to keep up pace with the demand of the healthcare industry? तो जो बताया जा रहा है और जो सिखाया जा रहा है इसके बीच में एक बड़ा गैप है. सो मुझे लगता है जो हम स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम लोग चला रहे हैं उन्हें किसी इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करना चाहिए. ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग देनी चाहिए. सेम टाइम बताना चाहिए कि आपने जो ये सीखा है आपको इस नाम से रखा जाएगा, ना कि अगर आपने वार्ड बॉय का काम सीखा है तो आप सीधे डायलिसिस टेक्नीशियन बन जाएंगे. बट ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप दूर होंगी जब आप जैसे लोग इस फील्ड में आगे आएंगे, ठीक से स्किल डेवलपमेंट करेंगे और उनको सही जगहों पे पहुंचाएंगे. Hi viewers, I'm Vivek Sinha, the founder and CEO of Mversity, and I welcome you all to this healthcare focused podcast series, The Prognosis. So the idea behind launching this podcast was to help create next generation of leaders for the healthcare industry. And we thought what could be a better way to do this than let leaders of today groom leaders of tomorrow. So in each episode in the podcast, we'll be talking to a top CEO or an entrepreneur from the healthcare industry. So if you are an industry professional or a clinician or an entrepreneur building for the healthcare industry, then this podcast is for you. This podcast is brought to you by the Mversity team. We are a training and recruitment platform for the healthcare industry. We do two things in service of our mission, which is to address the global shortage of doctors, nurses, and allied healthcare workers. First, we run work-integrated degrees and diploma programs which are curated along with the top healthcare companies and NACA plus universities. And second, we also run an online jobs marketplace called Resume with an RX. Now, Resume is a portal which is a 10 times smarter way of getting hired by a top healthcare company in India. All right, let's dive right in. Hello viewers, welcome to another episode of The Prognosis, Perspectives from Healthcare CEO. Today we have our first woman guest on the podcast. Please join me in welcoming Dr. Upasana Arora. Upasana मैम आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में. Welcome to the podcast. All my viewers and all of us, we have read a lot about you. We have read about the journey of Yashoda. But before we go on a professional journey, we would like to understand about you, your life experiences, or whatever that has not been covered in the media. Please, ma'am. Thank you so much for calling me here, and it was a great journey because my life was not bed of roses. I was born in a family which was very rich that time. Father was doing very well. But you know, गरीब से अमीर होने की कहानी अलग होती है और अमीर से गरीब होने की कहानी बहुत अलग होती है. But my father became sick and we were having everything in life. Like उस जमाने में कार and fridge और ग्रामोफोन, टेलीफोन, इन सारी चीजों के साथ जब आप पैदा होते हैं फिर आप देखते हैं कैसे वो चीजें बिकती हैं जब आपके घर में कोई अर्निंग मेंबर नहीं होता. तो वो सारी जद्दोजहद थी. And there was no male member in my family, but like after father, there was no uncle, no brother. We are only two sisters. So I have seen very tough time in my life.
बट एंड आई लॉस्ट माई मदर बिफोर माई मैरिज. अदरवाइज मेरी शायद शादी नहीं होती और मैं IAS ऑफिसर होती, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट. But unfortunately, I lost her, and then there was no option left for me because मैं अपने मामा जी के साथ गई and he said that you have to get married. This is the only way. So anyhow, then हमारी शादी हुई and as usual एक बड़ी joint family थी. उसमें कुछ साल तो मैंने घर में as a good housewife and as a mother and daughter-in-law, I played many roles and I was happy. But anyhow, जो आदमी कुछ करना चाहता है वो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ कोशिशें करता है. तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल का तब एक्सपेंशन हुआ था, तो मुझे भेजा गया था जस्ट टू लुक आफ्टर एवरीथिंग, बिकॉज तब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे लाल कृष्ण आडवाणी जी. Just to see the things, everything has to go in the right direction. उनका वेलकम कैसे करना है, उनका लंच कैसे कराना है. So I went to hospital just to look after everything. But then I decided I will not go back. I have to do something in life, not only, homemaker is playing a very important role, and I really respect and I want that female has to give time to home also. But same time, if you have any quality, then you need to, use your skills and your qualities. Because मैं स्कूल के जमाने में बहुत अच्छी लीडर हुआ करती थी. I was always monitor, then captain, then best captain. कल्चरल प्रोग्राम्स करवाती थी, रोज प्रेयर्स करवाती थी. तो देयर आर समथिंग विच इज ऑलवेज विद इन यू, दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट वर्क. सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्किंग विद माय हॉस्पिटल. एंड उसके बाद कुछ साल तक तो हम लोग वहीं रहे. आई मीन टू से देयर वाज अ ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच ऑफ आवर हॉस्पिटल इन गाजियाबाद, नेहरू नगर. देन वी स्टार्टेड दिस कौशाम्बी हॉस्पिटल. And luckily, this was the place where I got my wings, because this was the place which I was solely responsible for that. तो सीखा, बहुत कुछ सीखा. And मुझे ऐसा लगा health care is a place where whatever you can do, you have to do. Because वहां जो भी आता है, they are actually need your help. Emotional, medical, financial, every kind of help they need from you. Because everybody is not having big pockets कि अगर आपका बहुत बड़ा बजट आपने बताया तो they can meet your expectation. So there are many things. Anyhow, then I thought we should go with the different kind of style whatever we were doing for many years. So NABH played a very major role in my life. हमने फिर NABH करवाया. NABH is a accreditation body ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. तो हॉस्पिटल्स के लिए इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेशन नहीं है इंडिया में. तो हमारा हॉस्पिटल उस एरिया का फर्स्ट हॉस्पिटल हुआ. एंड दैट टाइम वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ आल्सो, बिकॉज हम लोगों ने इतना क्लोजली काम किया. 4th क्लास स्टाफ से लेके हमारे कंसल्टेंट तक, हम लोगों के दिमाग में था कि ईट NABH. आई वाज जस्ट गिविंग सम speech to them just to make them encourage कि eat NABH, sleep NABH. So सबके दिमाग में सिर्फ NABH था. उसके बाद I realized कि if your patient, because NABH is all about patient safety. So when your patient is safe in your hospital, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. आपको आपका पेशेंट ठीक है, आपका पेशेंट सेफली अपने घर जा रहा है, तो वो आपको अच्छा फीडबैक भी देगा, आपकी मार्केटिंग भी करेगा. एंड सिर्फ आपको एक काम करना होता है, उस ट्रांसपेरेंसी रखनी होती है. तो वो वी हैव डन इट, एंड नाउ यू कैन सी द जर्नी ऑफ यशोदा. That's amazing, ma'am. So one thing that really strikes me in your journey is कि जब आपने शुरू किया था तो आपका एस्पिरेशन था प्रशासनिक सेवा में जाना. But life had very different things in store for you. I think जब आप civil services की preparation and then an unfortunate incident happening in your family जिसकी वजह से you got married way early than what you had expected. Did these experiences make you more stronger in your life to achieve whatever professional success you achieved eventually? How do you when you look back, how do you see these experiences जो शायद उस समय पे आपको setback लगे होंगे? Did these experiences make you stronger?
So, first of all, I would like to tell you when I joined hospital, so I was the youngest member of the family. And in the hospital also, everybody knows me as a wife of Mrs. P. N. Arora, wife of Mr. P. N. Arora. So she is Mrs. P. N. Arora. So nobody was accepting me as a Upasana. कि भाई उपासना भी कोई एक शख्सियत है, एक व्यक्तित्व है उसका अपना. That was a very challenging time. So, my father-in-law was working with me, my brother-in-law, my sister-in-law, my husband, and everyone was, senior than me, and all those consultants who were working with them from many, many years. So I thought if I will touch in their field, then nothing is going to work here. It's better I should do something else. So what you said, what was the thing which inspired you to go work harder and all? Because what I was seeing that everybody was, when I was going to office, I was working, everybody was thinking, अरे चलो time pass के लिए आ गई, घर में खाली बैठी होंगी. I was never wanted such kind of comments, not compliments. So anyhow, I decided to make my hospital fully computerized. That time it was really very rare hospital who were doing computerized work. Then there were many things like drums को आपको underground tank में बदलना डीजल के, सिलेंडर्स को अगर आप वेसल में तब्दील करते हैं, अपनी किचन रन करना, सेमिनार हॉल बनवा के उसमें कुछ कॉन्फ्रेंसेस कराना. तो एवरीथिंग विच वाज नो वन वाज डूइंग इन माय फैमिली. सो आई जस्ट वांटेड कि आई शुड नॉट टच एनीवन्स वर्क because I can see in their eyes a question mark. What she will do here? So this was the thing I wanted कि she can do many things. So ये था एक inspiration. और दूसरा when I was doing everything in Kaushambi, but still when you are taking work from your colleagues or your juniors, they should have some respect for you. They should not think कि भाई अरे अस्पताल अपना है तो आ गई हमको सिखा रही हैं. That is why I studied a lot, many things, like I have done assessor courses of CII, then NABS, then I went to Ahmedabad, IIM Ahmedabad, then Harvard, then lots of many other courses related to hospital management as well as accreditation and patient safety. So I am the first SCOA fellow in India. When I started doing this fellowship, everyone was thinking, अरे अब इनको क्या जरूरत आ गई, ये fellowship क्यों कर रही हैं, इनका अपना अस्पताल है, इनको क्या अपना resume बना रही हैं. But whatever you do, you should do from bottom of your heart. सब कुछ उसमें डालो, only then आपको सफलता मिलेगी. That is what I am telling everyone ना, कि भाई stairs लेके ऊपर जाते हैं, there is no lift for success. बड़ी मेहनत करी है आज यहाँ तक पहुंचने में. लोगों की आंखों में जो एक प्रश्न चिन्ह था, what she will do, that they can see what I am doing. Wow, there's no lift for success. That's very inspiring. It's also interesting to see that a lot of people think that by the virtue of being from the family, things would have been easier for you, or it would have been a joyride. But it was not. While there are advantages of being from the promoter family, there are also baggages. And it's really inspiring to see how you also had to work your way to earn everybody respect rather than just commanding the respect. You had to upskill yourself, and most importantly, you were not a doctor. So being a non-clinician or a non-physician and still excelling in the healthcare field, that would not have been easy. And for example, even I cross paths with the healthcare industry, not being from a clinician background. The first reaction is to dismiss you. So I'm sure that would have not been such a easy thing. So very inspiring about that, ma'am. In this journey, what were the one or two toughest part? If you can recall one or two instances, one or two stories, and tell us how were you able to maneuver through it? Only one thing which there are many things, but one thing which I can never forget, that was the first time there were nursing strike in my hospital. And it was around 2012. One fine day when I was getting ready and going to hospital, I got a call from the hospital that nurses are on strike. And
it was very shocking for me because I never keep my staff as a staff. We are used to call them family. And वो सारे लोग, मतलब 2 दिन पहले ही कोई बीमार हुई थी नर्स, एंड मैंने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया था, एंड मैं उसको मिलने गई थी, एंड जब मुझे पता लगा कि वो भी खड़ी है, तो दैट वाज अ वेरी शॉकिंग एंड वेरी, आज तक मुझे याद है, 12 साल हो गया. So जब मैं पहुंची थी, whatever discussions are, and that was not my staff. I am telling you, there was a kind of a scandal was going on, and still they are there. They have made some association kind of thing, and what they were doing, they were just blackmailing hospitals. कि हॉस्पिटल में वो क्या करते हैं, कुछ कुछ पैसे लिए स्टाफ से, उनको अपना मेंबर बना लिया, 500 रुपए ले लिए, तो अगर हजारों मेंबर बन गए तो कुछ तो उनके पास पैसे पहुंच ही गए. एनीवेज देन मैंने बुलाया और बात करी. मेरे को अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा शर्मिंदगी कभी नहीं हुई, क्योंकि मैंने आज तक अपनी पूरी इतने साल की हो गई, मैं एक तो मैं झूठ नहीं बोलती. आई हेट, आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए आप दूसरा झूठ बोलते हैं. दूसरा, मैं कभी भी किसी भी, चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, किसी के साथ भी ऐसा कोई काम नहीं करती कि मुझे ऐसा लगे कि मैंने उसका शोषण किया. तो व्हेन नथिंग है, मतलब हमारे अस्पताल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाउ कैन यू डू दिस. दूसरा, जो पेशेंट है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरे भरोसे मेरे अस्पताल में है. आप लोग बाहर खड़े हैं, तो मतलब इट वॉज सच ए, वो एक ऐसा इंसिडेंस है जो मुझसे, जब मैं IIM अहमदाबाद में थी, तो किसी ने मुझसे, कोई बच्ची थी जो रिसर्च कर रही थी, तो शी केम टू मी कि कोई एक इंसिडेंस बताइए जो आपकी लाइफ में आपको सबसे पेनफुल लगाओ. मैंने कहा देखो, मैंने तो माँ बाप खो दिए, ये बड़े पेनफुल बात थी, लेकिन वो मैं कह सकती ईश्वर की मर्जी थी. लेकिन जो मेरे साथ ये एक घटना हुई, लेकिन उसके बाद से 12 साल हो गए, आज तक दोबारा कभी वो वैसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ. क्योंकि अब मैं, जो मेरे पास आता है, मैं सबसे कहती हूँ, जिसको जो प्रॉब्लम है, कम टू मी, टॉक टू मी, डू नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ फस इन द हॉस्पिटल. सो एक वो इंसिडेंस है जो मैं भूल नहीं पाती. आई ट्राई मेनी टाइम्स कि छोड़ो यार, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन आप भूल नहीं पाते कुछ चीजें. हाँ, और healthcare anyway is very people intensive business. It's people serving people, or let's say nurses or your therapists serving patients. तो ये तो एक ऐसा, आई थिंक ऐसा सेक्टर है कि नो मैटर कितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए या कुछ हो जाए, जो रॉ मटेरियल है हेल्थ केयर का वो तो लोग ही हैं. तो इस इंस्टेंस के बाद आपका लोगों को, आपकी टीम मैनेजमेंट का या हैंडलिंग का तरीका, आपने कोई बदलाव किए, या व्हेन यू रिफ्लेक्टेड, हाउ डिड यू इंश्योर कि यू नेवर फेस्ड एनी सच इशू अगेन? एक बात जो व्हाट आई फील कि कुछ लोग हैं जो हमारे हॉस्पिटल के, मैं पिलर्स कह सकती हूँ, एंड दे आर वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. पहले क्या होता था, मैं हर एक से बहुत अटैच होती थी. मतलब एक नर्स है, उससे भी अटैच हूँ, एक IT का बंदा है, उससे भी अटैच हूँ. अगर वो जा रहा है तो मतलब 2 दिन मेरे बेकार हो गए कि अरे ये क्यों चला गया, इस नौकरी क्यों बदल ली, टाइप्स. मतलब आई वॉज इमोशनली अटैच विद एवरीबडी. नाउ आई एम कीपिंग अ डिस्टेंस, because now I don't want to waste my energy, because it's a kind of profession. You cannot attach with everybody like your family. Even I just got for some therapy also, कि भाई ये इंसिडेंस हुआ, फिर देन एक बच्चा था मेरे साथ, उसको मैंने, मेरे साथ ही उसको पढ़ाया लिखाया मैंने, मतलब IT में बच्चा था वो, उसको मैंने BSc कराई, MSc कराई, जो भी उसने पढ़ना चाहा, बहुत साल रहा, और ऑल ऑफ सडन ही स्विच्ड. तो मेरे को बहुत, आई वॉज रियली, बिकॉज उसकी शादी वादी भी मैंने ही कराई थी, तो आई वॉज फीलिंग रियली जैसे ना अबेंडन, कि अरे कोई मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है. आफ्टर दैट आई हैव जस्ट चेंज माई सेल्फ, कि कुछ लोग हैं मेरे अपने हॉस्पिटल में जो मेरे बहुत क्लोज हैं, बाकियों से मैं अब थोड़ा सा डिस्टेंस रखती हूँ, क्योंकि फिर आप ना इमोशनली इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे, देन यू कांट वर्क. मैम, सो आई थिंक आपकी जर्नी की शुरुआत तो लगभग 30 साल पहले हुई, और यशोदा की भी शुरुआत लगभग उसी दौरान हुई. और जब हम बात कर रहे थे तो आप NABH के रूल, NABH के एक्रेडिटेशन या स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट्स जैसे डेवलप हुए, आपने वो जर्नी देखी है. इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड the evolution of healthcare in the last 30 years that you have seen. One aspect is of course कि standardization कैसे आया. ऐसे 2-3 एक क्या चीजें हैं कि when you look back and reflect on your journey or when Yashoda's journey, how have you seen Indian healthcare, and especially the hospital sector, evolving over the last 3 decades?
Actually, if you see, there was a time only family physicians were there. आपके पास एक डॉक्टर होता था, सब लोग वहां जाते थे, क्लिनिक पे दिखाते थे, वो सारी चीजों का इलाज भी कर देता था और आप ठीक भी हो जाते थे। यशोदा शुरू हुआ है 90 में, और इट इज माई मदर इन लॉ वॉज यशोदा एंड शी वॉज अ कैंसर पेशेंट। तो माई हस्बैंड वॉज यूज टू टेक हर टू बॉम्बे टाटा कैंसर। When she expired because of cancer, then my husband decided to, with his father and brother-in-law and sister-in-law, because both of them were doctors, कि we should start a hospital because there was nothing in Ghaziabad. So that is how they started. In 88 में मम्मी जी की डेथ हुई थी और 90 में हम लोगों ने अस्पताल शुरू किया था। मेरी शादी हुई थी 94 में। तो ये वो समय था जब छोटे नर्सिंग होम हुआ करते थे, सिर्फ 4, 6, 10 बेड वाले। हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट यशोदा, मतलब अगर मैं आप देखें पूरे इंडिया में तो अपोलो लेकर आया है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। देन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यशोदा पहला एक अंडर वन रूफ था, जिसमें सीटी स्कैन भी था, न्यूरो सर्जरी भी हो रही थी, काफी चीजें हो रही थी। बट स्टिल अगर आप वो जर्नी अगर आप आज के जमाने में देखते हैं तो इतना कुछ बदल गया है, टेक्नोलॉजी इतना आगे चली गई है, जो सर्जन्स हैं उनकी स्किल्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं एंड दे हैव टू लर्न ऑल द टाइम। एआई बहुत ज्यादा आ चुका है, अगर आप हेल्थ केयर में स्पेशली देखें तो एआई का बहुत बड़ा रोल है। सेम टाइम हम लोग इतना डिजिटल हो गए हैं, जैसे मेरा पूरा हॉस्पिटल डिजिटल है, एवरीवन इज यूजिंग कंप्यूटर, इवन डॉक्टर्स आर यूजिंग नोट्स ऑन काउ। तो वो सब कभी नहीं था। जब मैंने पहली बार अपने यहाँ जब कंप्यूटराइजेशन कराया था तो हमने सबसे पहले निकाली थी लैब की रिपोर्ट्स को, जो हाथ से जाती थी, और आज मैं देखती हूँ तो पूरा अस्पताल बदला हुआ है। सेम टाइम मैं देखती हूँ टेली मेडिसिन भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम है फॉर एवरीवन। अगर आपको नहीं आना है अस्पताल, आप डॉक्टर को जानते हैं, आपने उनसे ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन लिखाया हुआ है, आपको सेकेंड ओपिनियन लेना है, यू कैन टॉक टू डॉक्टर ऑन फोन, विच वॉज नॉट देयर। पहले लंबी लंबी लाइनें लगी, आप खड़े रहिए, घंटों में आपका नंबर आएगा। तो थिंग्स आर चेंजिंग एंड मुझे लगता है सबसे ज्यादा चेंज आया ही हेल्थ केयर में। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, अगर आप देखेंगे तो जब से रोबोटिक शुरू हुआ है तो काफी चीजें, जो पेशेंट की रिकवरी थी वो बहुत फास्ट हो गई है। अब आपको समय नहीं गंवाना है कि आपका ऑपरेशन हुआ तो आप 1 महीने आराम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चीजें बहुत बदली हैं और मैं बदलता हुआ हेल्थ केयर देख रही हूँ, बदलता हुआ हिंदुस्तान देख रही हूँ। अभी रोबोटिक सर्जरी आपने शायद एक नया डिपार्टमेंट भी शुरू किया है रोबोटिक सर्जरी का, मैं पढ़ रहा था कहीं पे, उसके बारे में थोड़ा बताएं मैम। देखिए, रोबोटिक हमारे यहाँ साल भर हो गया एंड 1 साल में जितने केसेस हमने किए विच इज कमांडेबल। एंड मैं आपको सच बताऊं, मेरे को कभी भी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ने मांग की थी कि हमें रोबोटिक सर्जरी के लिए रोबोट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था, ये सब बेकार की बात है, मुझे कोई रोबोट में विश्वास नहीं है, आप लोग खुद करिए। बट दे सेड नहीं मैडम हमें चाहिए, तो एनी हाउ हमने दा विंची खरीदा और उनको दिया। बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि गायनकोलॉजिस्ट इतना अच्छा काम करेंगे। तो गायनी डिपार्टमेंट इज यूजिंग रोबोटिक सर्जरी वेरी वेल एंड रिजल्ट्स आर वेरी गुड एंड जनरल सर्जन तो कर ही रहे हैं। इवन अभी एक लंग सर्जरी हुई, मतलब मेरे लिए, मेरी जो ऑन्को की सर्जन है शी इज ऑल्सो फीमेल। आई ट्राई टू कीप मोर फीमेल्स, क्योंकि अभी मैं कल ही एक फंक्शन था हमारा वर्ल्ड वुमेन लीडर्स का, रेखा शर्मा जी आई थी एनसीडब्ल्यू की जो चेयरमैन है। ईच वन रीच वन, अकॉर्डिंग टू हर एवरी एम्पावर्ड वुमेन शुड मेंटर 1 फीमेल। तो ये हम तो बहुत सालों से कर रहे हैं, 1 नहीं, हम तो पता नहीं कितनी वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं। तो इन माई हॉस्पिटल यू विल फाइंड मैनी फीमेल्स आर ऑन टॉप लेवल। तो वो ऑन्को सर्जन है एंड शी हैज डन रोबोटिक सर्जरी ऑन लंग्स। उन्होंने लंग्स का प्रॉपर जो भी उसका पार्ट निकालना था निकाला। तो these kind of things we could not even think of, अगर आप 5 साल पहले भी चले जाओ, कि ऐसा हिंदुस्तान में। देयर वॉज अ टाइम व्हेन मैं हार्वर्ड से लौटी तो हार्वर्ड वालों को मैंने इनवाइट किया था, तो डीन वगैरह आए थे। तो व्हेन दे सॉ माय हॉस्पिटल दे सेड कि हमने कभी नहीं सोचा था कि गाजियाबाद जैसे छोटे शहर में इतना मॉडर्न हॉस्पिटल हो सकता है। तो ये चीजें हैं जो बदल रही हैं और अब छोटे शहरों में भी अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के अलावा और 1-2 टेक्नोलॉजिकल की एडवांसमेंट्स क्या है मैम जो आपके हॉस्पिटल ने इम्प्लीमेंट किए? जैसे रिमोट आईसीयू के साइड काफी अभी डेवलपमेंट हुई है, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग में काफी डेवलपमेंट हुई है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में भी काफी टेक्नोलॉजी आ रही है,
Please let us know what are the 2-3 key trends that you see as key technological advancement, and especially any other technology that your hospital has adopted in the recent times. एक तो हम लोग डोजी सिस्टम यूज कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, विच इज वेरी गुड फॉर द वार्ड पेशेंट, बिकॉज वार्ड में पेशेंट का अटेंडेंट होता है साथ में, देयर इज नो मॉनिटर, देयर इज नो डॉक्टर सिटिंग देयर, देयर इज नो नर्स सिटिंग देयर. सो उससे हम लोगों को डॉक्टर को पहले ही पता चल जाता है कि भाई उसके वाइटल्स आते रहते हैं कि पेशेंट इज डिटेरियोरेटिंग, तो वी आर एबल टू सेव मैनी लाइव्स. सेम टाइम जैसा आपने कहा HIS सिस्टम हम लोग वी आर यूजिंग फुल्ली. माय हॉस्पिटल इज नाउ एक्रेडिटेड बाय NABH फॉर डिजिटल स्टैंडर्ड्स. सो यूपी का पहला अस्पताल है और इंडिया का भी टॉप 10 में आता है. तो एक तो ये सिस्टम हम लोगों ने यूज किया है. दूसरा, जहां तक आप बात कर रहे हैं EICU की, we are trying to help other hospitals who are not very well, managed by the intensivist and all. सेम टाइम अभी मैं अगर आपको बताऊं, हम लोगों ने जैसे अपनी गैस्ट्रो डिपार्टमेंट है, उसमें हमने बहुत नई से नई चीजें लगा ली. जैसे मैनोमीट्री भी आ गई, EUS भी हो रहा है, पोएम सिस्टम है, और पता नहीं क्या क्या, मतलब देयर आर मैनी थिंग्स विच वी हैव नॉट हर्ड. सेम हमने पल्मों में बहुत कुछ ऐसा किया है, जैसे कि अब हम CPET लगाते हैं. पहले क्या है, सांस फूल रही है, आप सुनते होंगे कि अरे उनकी सांस फूल रही है. यही नहीं पता होता था कि सांस लंग की वजह से फूल रही है या हार्ट की वजह से फूल रही है, और ये डॉक्टर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल था पता करना. तो सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये रिपोर्ट्स हम लोग साथ ही साथ, जैसे ECG मशीन है, मान लीजिए मेरे कई सेंटर हैं कि एक जगह ECG हुई तो वो सीधे ECG हमारे कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचती है. अगर एक नॉर्मल डॉक्टर कहीं बैठा है अपनी क्लिनिक पे, उसने भी ECG की, तो वो सीधी रिपोर्ट आएगी मेरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास. ही कैन सी कि भाई चेस्ट पेन लेके कोई गया है तो इसको कुछ है भी या सिर्फ ऐसे ही है. इफ देयर इज सम प्रॉब्लम देन वी आर शिफ्टिंग पेशेंट टू आवर प्लेस. सो दीज टेक्नोलॉजीज आर रियली हेल्पफुल, बट स्टिल आई विल टेल यू, nobody can meet that thing which is that touch of a doctor, जो सर पे हाथ रख के कहता है डोंट वरी आई एम हियर. तो मुझे लगता है डॉक्टर की जगह कोई ले नहीं सकता, बट स्टिल ये डॉक्टर को हेल्प करती है टेक्नोलॉजी. मैम, whenever it comes to implementing a new technology or incurring any capital expenditure in general, एक कॉन्फ्लिक्ट आता है बिजनेस ROI वर्सेस पेशेंट आउटकम. कई बार क्या होता है, किसी नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का ROI अनसर्टेन होता है, या लेट्स से फ्यूचर में आएगा, इट विल कम ओवर द नेक्स्ट 5 or 10 years, बट पेशेंट आउटकम्स या से पेशेंट सेफ्टी या आउटकम या हैप्पीनेस may be it out. Being a family run business, at the end of the day it is a business. I know you have a different thought process when running a hospital, you don't run it as a business, but how do you look at things? जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे कि आपकी कॉस्ट इमीडिएटली कम हो जा रही है, वो तो सारे हॉस्पिटल्स इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर लेते हैं, बट कुछ टेक्नोलॉजी या कोई भी नई चीज जिसका रिटर्न फ्यूचर में मिलने वाला है, अनसर्टेन है, आएगा नहीं आएगा, एंड इट विल सिट एज अ कॉस्ट लाइन आइटम ऑन योर P&L. हाउ डू यू लुक एट दोस थिंग्स? देखिए, मैंने जब हमारा आप इनफॉर्मल बात करें तो मैंने तभी कहा था, मुझे लगता है कि हॉस्पिटल जो भी चला रहा है उसे बहुत ज्यादा बिजनेस मॉडल के बारे में नहीं सोचना चाहिए. हम लोगों ने कभी भी, मतलब NABH में एक इंटरव्यू हुआ करता है जो मैनेजमेंट का, जो असेसर पूछते हैं कि आपका क्या बजट है. हमारा आज तक कोई बजट नहीं है. मतलब हमने कभी भी ये नहीं सोचा, पेशेंट सेफ्टी के लिए वॉट एवर इज रिक्वायर्ड वो हम तुरंत खर्च करते हैं. और दूसरा सबसे बड़ा जो फैमिली ड्रिवन बिजनेस का फायदा है, आई एम द ओनर, आई एम द डिसीजन मेकर. जैसे कोविड टाइम में मैंने फोन पर ऑर्डर किया कि भाई मुझे 100 मॉनिटर और चाहिए, क्योंकि उस समय सभी पेशेंट्स को मॉनिटर की जरूरत थी. अदरवाइज हॉस्पिटल में होता है, ICU में मॉनिटर होते हैं, डायलिसिस में मॉनिटर होते हैं, HDU में होते हैं, बट नॉट इन एवरी वार्ड. बट उस समय जरूरत थी, तो मुझे किसी से पूछना नहीं था. जैसे जब मैंने ECMO शुरू किया, तो ECMO इज नॉट डे टू डे प्रोसीजर कि सब पे ECMO होने लगेगा. वो इन्वेस्टमेंट जो हमने किया वो हमें पता नहीं वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट उससे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे 2 साल 3 साल में अगर हमने 4 लोगों की जान बचाई, तो ये चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि जरूरी है, आपको करना ही चाहिए, बट हमेशा ROI हो नहीं सकता हेल्थ केयर में. मैम, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके देयर इज अ
lot of talk going about artificial intelligence and its impact on every sector, and healthcare is no different. Lately, every healthcare conference that I've attended, there's a lot of discussion about how artificial intelligence can reshape, let's say, certain aspects of healthcare delivery. How much of it is at thought level versus how much of which do you actually see getting implemented on the ground for, let's say, a healthcare provider like you? जैसे जब मैं दूसरे सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ तो एक स्पेशली अब लेटली एक ये फीडबैक आ रहा है कि द टेक्नोलॉजी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बट इट्स उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस फॉर द एंड यूजर और लेट्स से इन आवर केस प्रोवाइडर्स अभी थोड़े अनक्लियर है. हैव यू सीन एनी लाइक रियल लाइफ ऑल्टरिंग और नीडल मूविंग इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप आज इंप्लीमेंट कर सकते हो हॉस्पिटल्स में, जिससे कि पेशेंट आउटकम इंप्रूव या हॉस्पिटल की एफिशिएंसी आए, या अभी उसमें हम कुछ साल दूर हैं उस स्टेज से? नहीं, देखिए कुछ चीजें बहुत अच्छी आई हैं, स्पेशली अगर हम होम केयर पे ध्यान दें तो होम केयर में काफी फर्क ये पड़ा है कि जैसे आप मान लीजिए पेशेंट होम अपने घर चला गया है और आपने वहां पे कुछ डिवाइसेस उनको दे दी हैं जो आप मॉनिटर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको पता है कि आपका पेशेंट पोस्ट सर्जरी किस हालत में है. वो डिवाइस आपकी मदद कर रही है, आपको टेक्नोलॉजी मदद कर रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियोलॉजी में काफी यूज हो रहा है बिकॉज वो ऐसा एल्गोरिथम बना रहे हैं कि भाई आपको पता चल जाएगा कि भाई टीबी है कि नहीं है, बिल्कुल अर्ली स्टेज पे एक्सरे में. ये सारी चीजें काफी हद तक ठीक भी हैं और चल भी रही हैं और काफी लोग यूज भी कर रहे हैं. बट अगर हम ये कहें कि हम टोटल अभी टेक्नोलॉजी पे ही चले जाएंगे और देयर इज नो नीड ऑफ एनीवन, तो हेल्थ केयर सेक्टर कभी भी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे चल नहीं सकता. इसमें मैन पावर हमेशा यूज होगा क्योंकि इसमें इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं. जैसे आपने देखा होगा जिस समय कोविड था, बहुत से लोगों ने रोबोट रख लिए थे जो जाके दवाइयां दे रहे थे. आई डोंट थिंक कि ये चीजें आप हमेशा कर सकते हैं. ठीक है, आप शो के लिए एक रोबोट अपना दे दीजिए जो आपके हॉस्पिटल में, अब जैसे हम लोगों ने भी बहुत सारी नई नई चीजें यूज कर रहे हैं हम हॉस्पिटल में. बट एंड ऑफ द डे पेशेंट सेटिस्फेक्शन तभी फील करता है जब वो डॉक्टर से बात करता है. तो मशीन कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ अ पर्सन, but machine can help the doctor for his accurate diagnosis. That is for sure. मैम ये हमने बात करी कि पिछले 30 सालों में आपने टेक्नोलॉजी के योगदान को और टेक्नोलॉजी के कंट्रीब्यूशन को कैसे इवॉल्व होते देखा है. अब अगर हम बात करें कि आपने हेल्थ केयर रिलेटेड रेगुलेशंस को कैसे इवॉल्व होते देखा है पिछले 30 सालों में, तो एक दो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या थे या पिविटल डिसीजंस क्या थे जिसकी वजह से हेल्थ केयर एक्सेस या अफोर्डेबिलिटी को फायदा पहुंचा है? अगर आप उस जर्नी पर रिफ्लेक्ट करें तो हमारे व्यूअर्स के लिए काफी अच्छा होगा. देखिए, एक तो मुझे जो सबसे अच्छा आज तक का डिसीजन किसी भी गवर्नमेंट का लगा वो था आयुष्मान भारत. एंड लकली मैं एनएचए की आयुष्मान भारत इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में भी हूँ. सो उसमें जो हमें बिकॉज ये इंटरनल डिस्कशंस थे जो हम लोगों ने किए, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि 70% लोग कवर हो जाएं, विच इज अ वेरी बिग थिंग. इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें 70% लोगों को कवर करना, सेम टाइम सबको सुनना. उसमें आप ये मानिए सारी एसोसिएशन थी, मतलब डिफरेंट स्पेशलिटी की अलग थी. मीन्स कार्डियोलॉजिस्ट की एसोसिएशन आ गई, नेफ्रोलॉजिस्ट की आ गई, हॉस्पिटल वालों की एसोसिएशन आ गई. इसके साथ साथ सारे स्टेट के जो सेक्रेटरीज, हेल्थ सेक्रेटरीज, उनको सुना गया. प्राइवेट में मैं थी, एक फोर्टिस के सीईओ आशुतोष जी थे, अपोलो के डॉक्टर जो मेरे फ्रेंड भी हैं बहुत अच्छे, वो थे. मतलब हम लोग तीन लोग थे प्राइवेट से. तो प्राइवेट को भी सुना उन्होंने, सारे सरकारी लोगों को सुना. तो उससे क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से होगा. हमारा हॉस्पिटल हमने लिया हुआ है आयुष्मान पे, और उसमें जो पेमेंट की बड़ी लोग आप पढ़ते होंगे अखबारों में भी कि अरे बड़े परेशान हैं हम. ऐसा नहीं है. इफ यू आर सेंडिंग योर बिल्स ऑन टाइम, यू आर डूइंग ऑल द वॉट एवर फॉर्मेलिटीज दे आर आस्किंग, तो बिल भी बहुत टाइम से आपको पेमेंट भी मिल रही है. ये एक बहुत बड़ी क्रांति है जो मैं बाहर, चूंकि मैं इंटरनेशनल भी जाती हूँ. अभी तक लोग ओबामा पॉलिसी पे बहुत चर्चा करते थे. मैंने कहा ओबामा तो पीछे ही रह गया क्योंकि हाँ, आयुष्मान भारत ने तो सबको बीट कर दिया. तो इट्स अ वेरी
बिग थिंग, एंड स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे आना, नर्सिंग कॉलेज बहुत सारे आना, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि अगर हम पर पेशेंट, हमारे पास अभी क्या हो रहा है, 1000 पेशेंट पे 1 डॉक्टर है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम और डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व करें, और डॉक्टर्स के लिए भी जरूरी है कि वो खुद को थोड़ा सा इंटीरियर्स में जाके भी लोगों की मदद करें। ये 2 चीजें हैं, मुझे लगता है हैंड ऑन हैंड ही चलेगा साथ साथ। रिसेंटली एक जो भी लिस्टेड प्राइवेट स्टॉक्स हैं हॉस्पिटल्स के, दे गॉट बैडली हैमर्ड, काफी हलचल मच गई थी बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कमेंट ऑन द एक्ट which has been pending since 2012 to standardize the rates of certain procedure. 2012 से industry was supposed to standardize or let's say cap the rates of certain treatment, but that has not been achieved, and that led to the Supreme Court commenting that if the government and the, let's say, the private hospital sector together, they don't arrive at a common rates, then they will be forced to cap the cost of all procedures at the CGHS rate. How do you see इसका inception क्या था? Why did the topmost court of the country had to make that comment? What was the inception of this? How do you see this going forward? और इस push की वजह से आपको क्या लगता है? What is the most likely set of outcomes? Ground पे क्या बदलाव होने वाले हैं? देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ भी कह पाना नाइंसाफी है, और ना ही हम लोग इस लायक है कि हम उनके बारे में कुछ भी कहें। लेकिन इतना जरूर है कि मुझे लगता है गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स ऑलरेडी इस बारे में काफी बात कर रहे हैं, मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं, और कोई ना कोई नतीजा निकल के सामने आएगा। क्योंकि ये एक पक्की बात है, अभी आप ये मान के चलिए हर चीज को आप बराबर नहीं कर सकते। जैसे 5 स्टार होटल में आप चाय पीते हैं, वही चाय आप 750 में पीते हैं, आप बाहर ढाबे पे चाय पीते हैं, आप 70 रुपए में पी लेते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या होता है? चाय तो चाय है, एटमॉस्फेयर का डिफरेंस होता है। जो हॉस्पिटल्स भी हैं, जो हाई एंड, जैसे हम लोग क्वार्टनरी केयर कर रहे हैं, हम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हम लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, अगर हम हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो अब उसका एक रास्ता ये निकाला गया है कि हॉस्पिटल को भी कैटेगरी दी जाएगी, ABC, अकॉर्डिंगली रेट्स भी दिए जाएंगे, चाहे वो आयुष्मान के हों और चाहे वो जनरल भी हों। तो जब तक इस तरह का कोई फैसला नहीं होगा कि भाई आप सारे लोगों को बराबर कैसे कर सकते हैं, एक डॉक्टर 100 रुपए फीस भी ले सकता है, एक डॉक्टर 1000 रुपए फीस भी लेता है, उसकी क्वालिफिकेशन में फर्क होता है। तो ये एक निर्णय ऐसा है जिसपे प्राइवेट प्लेयर्स और सरकार ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रही है। और जहां तक सवाल है CGHS रेट का, ये तो बहुत सालों की बैटल है जो लड़ी जा रही है कि रेट्स रिवाइज करें। मैं आपको बताऊं, जो रेट्स हैं उसमें आप जितने में टेस्ट कहा जाता है कि आप करिए, वो आप एक वॉयल भी नहीं खरीद सकते उसकी। बट समटाइम्स ये है कि देखिए, वो जो लोग हैं जो इसके बेनिफिशियरी हैं, चाहे ECHS के हों, चाहे CGHS के हों, चाहे ESI के हों, उन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए। भाई वो थे जिन्होंने इस देश को बनाया, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे या वो हमारे मिलिट्री के लोग थे, तो इन सब ने बहुत कुछ किया है। तो अब अगर अस्पताल कुछ नुकसान उठा के कर भी रहा है तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि सारा आप CGHS तो नहीं ले रहे हो, बाकी आप प्राइवेट भी ले रहे हो। और आज के जमाने में मैं आपको बताऊं, पहले लोग TPA नहीं कराया करते थे, इंश्योरेंस कितने कम लोगों का था। अब तो आप देखिए policybazaar.com दिन भर बताता रहता करा लीजिए, और लोग करा भी रहे हैं। तो चीजें काफी बदल रही हैं, लेकिन सेम टाइम अभी CGHS के रेट भी रिवाइज हो रहे हैं। जी मैम, ये तो काफी सेन आर्गुमेंट है कि एक्चुअली अगर रेट्स कैप हो जाते हैं तो आज जैसे एक काफी बड़ी आबादी को क्वालिटी हेल्थ केयर जो अवेलेबल है वो वायबल नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला कि हर इंडस्ट्री में हर जगह कभी कभी कुछ ऐसे प्लेयर निकलते हैं, इफ आई कैन यूज द टर्म बैड एप्पल्स, जिनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री पे या बहुत कुछ जो सही चल रहा होता है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है। तो आई थिंक जैसे अगर मैं कंज्यूमर के हैसियत से बोलूं तो इट इज ग्रेट फॉर मी एज एन इंडिविजुअल कि मेरे पास अगर आज लेट्स से एक इंश्योरेंस लेने की क्षमता है या पे करने की क्षमता है, तो मेरे पास मुझे सिर्फ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। प्राइवेट में मेरे पास काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक कंज्यूमर की हैसियत से अगर मैं देखूं तो हम सबके पास वो स्टोरीज हैं कि आप एक हॉस्पिटल गए एक छोटी सी सर्जरी के लिए, एंड मान लीजिए हल्का सा बुखार आया,
तो यू आर ऑल्सो बिल्ड फॉर अ कंसल्टेंट, जो कि शायद जरूरत नहीं है, या मीनिंगलेस टेस्ट. तो क्या आपको लगता है कि कुछ सम प्लेयर्स हु रिजॉर्ट टू थिंग्स लाइक ओवरचार्जिंग एक्सेट्रा, उसके वजह से पूरी इंडस्ट्री पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है? बिल्कुल, आप 100% सही कह रहे हैं. बिकॉज ऑफ दिस ओनली आई ऑलवेज से कि एक जो इमेज खराब है उसके दो रीजन है. कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने अननेसेसरी, जिनके दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट रहता है, कुछ तो वो हैं, और कुछ हमारा जो कम्युनिकेशन था अपने पेशेंट के साथ, मुझे लगता है अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको आपका जो कंसल्टेंट है, जो प्राइमरी कंसल्टेंट है, वो सारी बातें बिल्कुल ठीक से एक्सप्लेन करता है. जैसे हमारे यहाँ हम लोगों ने सीरियस पेशेंट्स के लिए क्लिनिकल बोर्ड बनाया हुआ है, जो हमारे बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं हमारे साथ, जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर आर.के. मनी, वो और सारे कंसल्टेंट जो उस पेशेंट के साथ इन्वॉल्व हैं, वो बैठते हैं और पेशेंट के अटेंडेंट को बताते हैं कि आपके पेशेंट को ये इश्यूज हैं, इसके ये प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, हम ये ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, क्या आप एग्री करते हैं? उससे क्या होता है, आपके कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं. आपकी जो दूसरा एक प्रॉब्लम क्या होता है, डॉक्टर्स ना जब से ये सब डिजिटल है, वो बेचारे टाइप कर रहे हैं या लिख रहे हैं, वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं है. तो जो एक फेथ था, जो एक बॉन्डिंग थी, वो खत्म हो गई है. मेरा मानना है अगर एक पेशेंट को अपने डॉक्टर पे भरोसा है और डॉक्टर उसको या अस्पताल उसको पूरी ट्रांसपेरेंसी से सारी बात बता रहा है, बिलिंग भी समझा रहा है, तो देयर विल नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट लाइक दिस कि मेरे साथ ऐसा किया गया. अब जैसे मेरे यहाँ एक बच्चा आया अभी लास्ट मंथ, कहीं वो बेचारा बच्चा ऊपर से गिरा था, उसको हेड इंजरी हुई थी. तो जहां भी वो गया सबने कहा ये बहुत बड़ी सर्जरी है और आपको बहुत इतने पैसे चाहिए. वो बेचारे गरीब लोग थे, इतने पैसे नहीं थे. तो मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने फोन किया कि क्या तुम मदद करोगी? मैंने कहा हाँ भेज दो. बच्चा मेरे यहाँ आया, मेरे डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा नहीं इसमें तो हम इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, लेट्स सी. 72 आवर्स तक हमने ऑब्जर्वेशन में रखा, फिर लगा सर्जरी की जरूरत नहीं है, तो वो ठीक होके हमारे यहाँ बिना सर्जरी के ही चला गया. सो दीज काइंड ऑफ इंसिडेंसेस जो होते हैं ना, वो बच्चे के माँ बाप हमेशा कहेंगे कि वो अस्पताल वाले तो जबरदस्ती उनको लूट रहे थे. तो ये हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं अपनी इमेज को खराब करने के लिए. तो मेरा अपने सभी कलीग से ये भी कहना है कि हम एज ए इंडिविजुअल हमारे को चेक नहीं कर सकते अपने किसी भी इंस्टीट्यूट में, बट वी नीड टू हैव सम पॉलिसी, वी नीड टू हैव सम गाइडलाइंस कि वी नीड टू फॉलो दिस. ऐसा नहीं है कि कोई XYZ कोई भी जिसका जो मना रहा है वो पेशेंट को बताता जा रहा है कि हम ये करेंगे, हम या वो करेंगे. तो दोनों ही पक्षों की जरूरत है, हमें अपनी इमेज बिल्डिंग की भी जरूरत है, और सेम टाइम जनता को भी अपने अस्पताल और अपने डॉक्टर पे विश्वास करने की जरूरत है. क्योंकि जब कोविड था, जब आपके अपने घर वाले भी आपको छू नहीं रहे थे, तब हम ही थे जो आपकी मदद कर रहे थे. और जब आप किसी मुसीबत में होते हैं, तब भी सिर्फ अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ही होता है, जो रातों को आपके अपने भाई बंधु भी नहीं आते रात में नींद खराब करने, हम ही होते हैं जो हमेशा आपके पास होते हैं. तो भरोसा करना बहुत जरूरी है दोनों पक्षों को एक दूसरे के ऊपर. मैम, when I was introducing you in the beginning of the podcast, one thing that really struck me was that I introduced you as the first woman to appear on the podcast. And even when I was making the guest list, as I told you, there are very few women leader in the healthcare industry. दूसरी इंडस्ट्री में तो समझ में आता है, because in any way the participation of women in the labor force is much lower, I would say. But अगर हम healthcare industry को देखें तो I think the participation of women in the healthcare industry is almost equal to men, or if I'm not wrong, it's actually equal to men. Equal, rather more than men. Because nurses are generally all women. And yes, there are examples. There are examples like you. There are examples like Dr. Sandhya Reddy. There are examples like Ameera. But these examples are very few. If I go, let's say, a level down and see hospital में कितने executives level पे, C level पे, even promoter and businesses में कितनी महिलाएं हैं जो businesses चला रही हैं, वो number insignificant लगता है compared to men. I think I may be wrong here, but I think I have seen 10x more number of men at leadership position in these healthcare organizations compared to women. What do you see as the reason of this disparity? Despite having such high participation in the overall workforce, why have women not been able to break that barrier and reach at leadership position in healthcare?
Actually, what is happening generally healthcare में you see females बहुत है, as a nurse, as a gynecologist, as a pediatrician, neonatologist. जब बात आती है CEO लेवल पहुंचने की, तो स्टिल अभी भी इवन अगर मैं अपने हॉस्पिटल में तो छोड़ दीजिए, मैं बहुत सारी जगह प्रेसिडेंट हूँ, बहुत सारी जगह बहुत कुछ हूँ, बट स्टिल देयर वाज, आई कांट नेम दैट प्लेस, बट आई वाज वर्किंग विद सम एसोसिएशन, सो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन था, तो समबडी नॉमिनेटेड माय नेम कि बिकॉज वहां पर भी सारे मेल्स थे, आई वाज द ओनली फीमेल, कि आई वांट कि भाई शी इज अ फीमेल, वी शुड गिव हर चांस. यू वोंट बिलीव द पर्सन हु वाज प्रेसिडेंट दैट टाइम, he was blast like anything. It cannot happen, she is a lady, how she can do, एक औरत इतना काम कैसे कर लेगी. I was thinking I could have given him answer, but मुझे लगा इनके स्तर पे उतर के मैं क्या बात करूं. तो सेम प्रॉब्लम है हेल्थ केयर में भी. लेडी बॉस को एक्सेप्ट करना अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है. इवन जो फीमेल्स काम कर रही हैं, जो बहुत सक्सेसफुल हैं, सब कुछ अच्छा है, बट समथिंग इज देयर जो आपको आगे जाने से रोकता है. और उसके लिए मुझे सारी महिलाओं से ये कहना है कि अगर वो सक्सेसफुल हो गई हैं तो उनको ना वो और ज्यादा हम्बल होना चाहिए. बिकॉज अगर वो अपनी सक्सेस को अपना मापदंड मान के अपने घर पे भी व्यवहार करेंगी या ऑफिस में करेंगी, देन ये प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी. क्योंकि आईटी सेक्टर वगैरह डिफरेंट चीजें हैं. हेल्थ केयर में ये सर्विस इंडस्ट्री है जिसमें आपको सारा दिन बात करनी पड़ती है. So you need to be always a polite boss, not a kadak boss. All the time kadak boss cannot work. And men's की देखिए, you are a male, I know. Men's को बचपन से ये देखते हैं वो अपने घर में कि माँ का रोल है किचन में. So जब वो बाहर जाते हैं तो आप ये देखिए, उनको ये लगता है ये लेडी मुझे क्या सिखाएगी, मैं तो खुद ही सब जानता हूँ. तो कहीं ना कहीं स्टिल अभी ग्लास सीलिंग है जो हमें तोड़नी पड़ेगी. और मुझे लगता है थोड़े दिनों की बात है, अब तो फीमेल्स आर डूइंग वेरी वेल. सो but it's very surprising to see that somebody like you, despite achieving so much in your career, despite building one of the most reputed hospital chain in Delhi NCR, अगर आपके भी capability को लेके question mark आते हैं, and that too in bodies or associations like that, so that paints a picture कि yeah, the glass ceiling is actually very much there. But yeah, hopefully we will, and of course we were discussing that you have promoted a lot of women in your organization so that they can grow and reach higher positions. So kudos to you for that. मैम आपने एक और चीज बताई, at some point of time you mentioned the issues about availability of skilled workforce. और मैंने ये जितने भी मेरे सारे डिस्कशंस में एक ये थीम निकल कर आती है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री की ग्रोथ में एक सबसे बड़ा आई वुड से रोड ब्लॉक जो आ रहा है वो ये आ रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर. नाउ इफ यू लुक एट इंडिया एज अ नेशन, वन थिंग विच वी हैव इन अबंडेंट इज अनएम्प्लॉयड पीपल. मतलब लोग तो काफी हमारे यहाँ, एंड वी ऑल्सो हैव अ फेयरली यंग पॉपुलेशन. आर मीडियन एज ऑफ आवर कंट्री इज 25-26. तो हमारे यहाँ वो नौबत नहीं है जापान या वेस्टर्न कंट्रीज की तरह दैट मीडियन एज इटसेल्फ इज 40. तो सो वी हैव द डेमोग्राफिक एडवांटेज, यंग लोग हैं, नौकरियां कम हैं. फिर क्या रीजन है कि हेल्थ, और दूसरी तरफ मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि हेल्थ केयर में काम करने के लिए स्किल्ड वर्कर नहीं मिल रहा है या एक उसकी शॉर्टेज है. ये दोनों ट्रेंड आपस में काफी विरोधाभास लगता है अगर आप ऐसे देखो तो. कि मुझे लगता है कि जो रॉ मटेरियल है लोग अनएम्प्लॉयड पीपल होते हैं. Why do you think skilling or education in healthcare has not been able to keep up pace with the demand of the healthcare industry? एक्चुअली आप खुद भी इस फील्ड में काफी काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा अब ऑल ऑफ सडन काफी ट्रेनिंग सेंटर्स शुरू हो गए हैं. स्किल डेवलपमेंट ने बहुत काम किया है. कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने कुछ इंस्टीट्यूट थे जो ट्रेन कर रहे थे स्टाफ को, तो आई थॉट कि दीज पीपल आर ट्रेन फॉर द एज ए वार्ड बॉय, एज ए वार्ड आया, सो दे कैन गिव बाथ टू द पेशेंट, दे कैन लुक आफ्टर देम. बट जब वो मेरे पास ट्रेन होके आए तो मैंने जब उनको बताया, मतलब वॉट एवर जो भी मेरा स्टाफ है उसने कहा आपका ये काम है, तो दे सेड नहीं हम ये नहीं कर सकते, हम तो टेक्नीशियन हैं.
तो जो बताया जा रहा है और जो सिखाया जा रहा है उसके बीच में एक बड़ा गैप है। तो मुझे लगता है जब हम किसी को अगर टेक्नीशियन बनाते हैं तो एक तो हमें उसको, आपने बहुत से ऐसे मेडिकल कॉलेज भी देखे होंगे जिसमें आप तो ईश्वर की कृपा से काफी सुधार हुआ है। देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज नो पेशेंट एंड मेडिकल कॉलेज वाज गोइंग ऑन। जो भी हम ट्रेन कर रहे हैं स्टाफ, उसको हम ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग दें, क्योंकि हेल्थ केयर की ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि आप किताबों में पढ़ा दें और उसको आप काम पे भेज दें। इवन आप छोटे से छोटा काम है, पेशेंट शिफ्टिंग, इट इज अ वेरी स्किल्ड जॉब। अगर आपने थोड़ा सा भी गलत आदमी ले लिया, पेशेंट फॉल हो जाएगा एंड देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। सो मुझे लगता है जो हम स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम लोग चला रहे हैं, उन्हें किसी इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करना चाहिए, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग देनी चाहिए, सेम टाइम बताना चाहिए कि आपने जो ये सीखा है आपको इस नाम से रखा जाएगा, ना कि अगर आपने वार्ड बॉय का काम सीखा है तो आप सीधे डायलिसिस टेक्नीशियन बन जाएंगे। देयर इज अ डिफरेंट थिंग। सो लोगों ने टेक्नीशियन शब्द सीख लिया और दे आर नॉट रेडी। आप ये भी देख रहे हैं ना, जो समाज बदल रहा है, तो जो बच्चे हैं अगर वो 10th पास भी कर लेते हैं, वो सोचते हैं हम पढ़े लिखे हैं, अब वो कंपनी में काम करने चले जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट की बहुत सारी कंपनियां हैं, बट इंडिविजुअल अगर आप उन्हें बुलाएंगे कि भाई आओ और हमारे यहाँ ज्वाइन करो, तो देयर इज अ हेजिटेशन। बट ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप दूर होंगी जब आप जैसे लोग इस फील्ड में आगे आएंगे, ठीक से स्किल डेवलपमेंट करेंगे और उनको सही जगहों पे पहुंचाएंगे। तो एक क्लिनिकल एक्सपोजर आपने बोला एक काफी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पढ़ाने से ज्यादा या क्लासरूम में टाइम स्पेंड करने से ज्यादा एक्चुअल हॉस्पिटल सेटिंग में ट्रेनिंग वही होती है। और दूसरा आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, एक्सपेक्टेशन सेटिंग, कि उनको सही एक्सपेक्टेशंस के साथ लाओ। जैसे ये हमने भी ऑब्जर्व किया है कि जैसे इंडिया में अब ये कल्चरल है कुछ हद तक, या कुछ हद तक परसेप्शन है, बट एवरीवन वांट्स अ व्हाइट कॉलर जॉब। एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम। Everyone wants to do a desk job, everyone wants to do a job in front of a computer or a white collar job, जबकि वहां पे नौकरियां लिमिटेड है। दूसरी तरफ हेल्थ केयर में एक्चुअली नौकरियां अनलिमिटेड है आज तो। जिस हिसाब से हेल्थ केयर सेक्टर बढ़ रहा है, काफी स्टेबल सेक्टर है। आई रिमेंबर कोविड में ऑलमोस्ट देयर वर लेऑफ्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर, बट हेल्थ केयर वाज द ओनली सेक्टर जहां पे आपकी नौकरी की इंपॉर्टेंस इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ पे दिस इज नॉट अ रेगुलर डेस्क जॉब और नॉट अ रेगुलर लेट्स से कंप्यूटर के सामने बैठ के करने वाला जॉब। डू यू थिंक इसमें वो कल्चरल या वो जो माइंडसेट एक है उसका भी योगदान रहा है कि लोगों को एमबीए या बीटेक वा जो रेगुलर एक होता है उसकी तरफ रुझान ज्यादा है? ये आपने बिल्कुल सच कहा है। व्हाइट कलर जॉब की तलाश में दुनिया घूम रही है। कोई भी आदमी बेसिक काम नहीं करना चाहता। वो तुरंत ये समझता है कि अगर मैंने किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी से कुछ भी कोर्स कर लिया तो अब तो मैं एलिजिबल हो गया कि मैं सीधे मैनेजर ही बनूंगा, मैं और बीच का कोई काम नहीं कर सकता, विच इज वेरी रॉन्ग। जब तक आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं सीखते हैं, जैसे मुझे लगता है इस मामले में होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। दे आर ट्रेनिंग देयर पीपल फ्रॉम द शुरू से सिखाते हैं, वो बिस्तर बनाने से शुरू करते हैं, कुकिंग भी कराते हैं और तब वो उनको फ्रंट पे लाते हैं। चाहे आप होटल मैनेजमेंट ही क्यों ना कर रहे हो, होटल मैनेजमेंट ही क्यों ना कर रहे हो। हेल्थ केयर में ये बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर आप देखें ना, अब जो टेक्नीशियन भी बनते हैं लोग, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि जो टेक्निकल काम है अगर वो ठीक से नहीं किया जाएगा, दैट इज वाई हम लोग कभी भी, जैसे जनरली आप छोटे अस्पतालों में देखें कि किसी को भी ट्रेन कर दिया और उसको आगे बढ़ाते चले गए कि आज वो फुल फ्लैश टेक्नीशियन बन गया। हम हमेशा, अगर हमें किसी को मान लीजिए प्रमोट करना भी है तो हम पहले उसको टेक्निकल ट्रेनिंग देने भेजते हैं कहीं कि भाई तुम सर्टिफिकेशन लेकर आओ, साथ में तुम इस काम को कर ही रहे हो, सीखो। सो अगर हम उस जॉब को थोड़ा और रिस्पेक्ट करने लगे, जो हम जिन चीजों को लोग अभी हेजिटेशन फील करते हैं, फ्लेबोटमिस्ट कितने कम मिलते हैं, जबकि आपका देखिए कितनी लैब हो गई हैं। लेकिन अगर अभी, क्योंकि हम तो एंड यूजर हैं, तो आई नो कि फ्लेबोटमी के लिए आपको ढंग का आदमी नहीं मिलेगा, वो 10 जगह सुई चुभाएगा तब वो आपको निकाल पाएगा आपका ब्लड। फ्लेबोटमिस्ट में सैलरीज अच्छी होती है। इनफैक्ट आई वुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि एक एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है, मतलब 20,000 पर मंथ की तनख्वाह मिलती है। एक फ्लेबोटमिस्ट एक्चुअली दिन में इंसेंटिव मिला के उससे ज्यादा ही कमा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
बट उनको ये लगता है कि अगर अब मैंने ये कोर्स किया है लैब टेक्नीशियन का तो मैं लैब में ही बैठूंगा. सो दिस इज द प्रॉब्लम कि शायद वो जो एक हार्ड वर्क करने का जज्बा हुआ करता था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और मुझे लगता है इसके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस की भी जरूरत है. वी एंड सेम टाइम जो हमारे जैसे लोग हैं जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन. दे शुड नॉट फील दैट, जैसे मैं अगर अपने यहाँ मैनेजर को बात करती हूँ नाम लेके, तो मैं अपने 4th क्लास एम्प्लॉय को भी नाम लेके बात करती हूँ. अगर हम साथ में कोई गेट टुगेदर है तो वो सेम टेबल से ही वो भी खाना लेंगे, सेम टेबल से ही हम भी खाना लेंगे. ये कल्चर हर जगह डेवलप होना चाहिए ताकि जो आदमी खुद को दूसरे से कमतर न महसूस करे, बराबर महसूस करे. ये भी एक हर आदमी के मन में तमन्ना होती है आगे जाने की. बट सेम टाइम अगर हार्ड वर्क से आप बचेंगे तो आगे जाने की कोई संभावना नहीं है. डॉक्टर उपासना, तो जैसे इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम्स स्किल्ड वर्कफोर्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, द सिचुएशन आउटसाइड इंडिया इज नो डिफरेंट. इनफैक्ट आई वुड से दैट इट इज वर्स बिकॉज at least we have the advantage of a younger population. वहां पे the population is not getting any younger, right? So they are completely dependent on geographies like India or Philippines to meet their healthcare workforce requirement. How do you see this as an opportunity? और आप सर्विसेज एक्सपोर्ट काउंसिल में भी हैं, आपको ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए टू बी द टैलेंट सप्लायर टू द होल वर्ल्ड? बिकॉज ये इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एज यू नो दैट वी आर हैविंग यंगर जनरेशन. So we can train them, we can send them away, and we can earn foreign currency to our country. Same time we can train more for ourselves. जैसे बहुत सारा क्राइसिस चल रहा है अभी नर्सिंग का, और because young kids are going abroad. बट अगर हम दोनों ही चीजों को बहुत आसानी से मैच कर सकते हैं क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, एंड फॉर वन जॉब देयर इज लॉन्ग लाइन यू कैन सी. सो इट इज ओनली दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि बच्चों को मिले, और उसके लिए जरूरी है कि जो स्किल डेवलपमेंट है उसको हम ज्यादा से ज्यादा करें, बिकॉज ऑलरेडी लॉट्स ऑफ पीपल आर वर्किंग अब्रॉड. सो बट व्हाट इज हैपनिंग, जो एक बार बाहर गया वो वापस नहीं आ रहा है. मेरा मानना यह है कि जाइए, काम करिए, वापस अपने देश आइए. सो ये एक संदेश है. मुझे लगता है कि दिस इज गुड फॉर द आवर कंट्री एंड फॉर others also, like as you said, US and UK. UK is totally depending on us, if you see in form of doctors especially. NHS के बहुत से डॉक्टर्स हमको अप्रोच कर रहे हैं फॉर माई न्यू प्रोजेक्ट बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी देयर. सो ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से अपने आप को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि वी आर द बेस्ट. And NHS I think is struggling to meet the requirement of doctors, nurses. शायद इंडिया से 40 से 50 हजार नर्सेज हर साल एनएचएस में जाए जा रहे हैं, उसके बाद भी उनकी अभी स्कैरसिटी कम नहीं हुई है. सो हाँ मैम, यू हैव ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली, आपने बाहर की हेल्थ केयर सिस्टम्स देखा है, यू आर पार्ट ऑफ लॉट ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज एंड सेक्टर एंड एसोसिएशन बॉडीज, जिससे कि आपको काफी एक्सपोजर मिला है कि बाहर में हेल्थ केयर सिस्टम्स कैसे दिखते हैं. अब ऑफ कोर्स एक एस्पेक्ट है कि वी कैन नॉट एप द वेस्ट बिकॉज वहां पे एवरेज पर कैपिटा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर $10,000 है, जो हिंदुस्तान में शायद $1,500 है. तो हम सब कुछ बिल्कुल आज तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं अपने आप को या मिमिक नहीं कर सकते हैं, बट एक दो ऐसी क्या चीजें हैं या लर्निंग है जो आप आने वाले 10 सालों में चाहोगे कि इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो, जो आपने कहीं बाहर देखा है? देखिए, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस था यूएस का, my husband fell sick when we were in US in New York, and I took him to the hospital within half an hour because I was not interested to take any risk. And you won't believe they were not even able to address the diagnosis. They said he is suffering from blood cancer, and they wanted to do bone marrow. And हमारे डॉक्टर ने फोन पे सुनते ही बता दिया था कि ये डेंगू है, और मेरी टीम यहां से वहां गई और हमारे डॉक्टर्स ने सारा गाइड किया. इवन आई कुड मैनेज, बिकॉज हमारा काम है तो आई नो मेनी पीपल देयर. आई कुड मैनेज हिज एंटीबायोटिक टॉक्सीसाइक्लिन विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड. अदरवाइज आई कुड हैव पता नहीं क्या होता. तो मेरा वहां के सिस्टम्स में और किसी भी चीज में मैं इंप्रेस नहीं हूं, बट ओनली वन थिंग विच आई रियली लाइक अबाउट यूएसए, दैट दे आर डूइंग really great research work which we are not doing.
सो अगर हम देखें सर्विस इंडस्ट्री के रूप में वी आर रियली गुड। अगर आप हमारे डॉक्टर्स का स्किल देखें, वी आर बियॉन्ड एनीबडी। हमारे डॉक्टर्स का स्किल एक्चुअली बहुत अच्छा है, क्योंकि जो टॉप 10 डॉक्टर्स यूएस के भी है ना, उसमें भी आप देखिए हर बार कम से कम 3 डॉक्टर इंडियन होते हैं जो उनका लिस्ट निकलता है। तो हमें अगर जरूरत है तो रिसर्च पे फोकस करने की। जिस दिन इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनीज रिसर्च करने लगेंगी, हम लोग रिसर्च करने लगेंगे, मींस हेल्थ केयर रिसर्च करने लगेगा। जैसे वहां मैंने देखा कि वो लोग रिसर्च के लिए पूरी पूरी विंग्स है उनके अलग हॉस्पिटल्स के साथ जुड़े हुए, विच वी आर एक्चुअली लैकिंग बिहाइंड। अगर हम ये करेंगे तो फिर हमें तो कोई भी बीट नहीं कर सकता। जी जी। Dr. Upasana, recently I was on a podcast with Viren Shetty of Narayana and Tarun from Orange Health, and I think Viren made a statement in that podcast that there are actually 2 Indias, healthcare के sectors के perspective से देखें तो India 1 is dying of surplus and India 2 is dying of scarcity. So I think what he meant was कि India 1 में लोगों के पास इतना है कि हम लाइफस्टाइल्स रिलेटेड डिजीजेस की वजह से अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, एंड इंडिया 2 दे डोंट हैव एक्सेस टू इवन बेसिक हेल्थ केयर। इंडिया 1 में ही वाज मेंशनिंग कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अगर आपके पास पैसा और पे करने की क्षमता है, देन प्रोबेबली इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बिकॉज एनएचएस में अगर आपको एक नी की सर्जरी करानी है तो आपको 6 महीना वेट करना पड़ता है, वर्सेस यहाँ पे यू कैन गो टू द बेस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल एंड गेट एनीथिंग डन, वर्सेस इंडिया 2 में एक्सेस की अपॉर्चुनिटी है। तो अगर हम इंडिया 1 की बात करें, एक्सेस टू वेरी हाई क्वालिटी हेल्थ केयर, अफोर्डेबल कंपेयर टू अदर ज्योग्राफी, देन इट ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर मेडिकल वैल्यू टूरिज्म। बिकॉज आसपास की जो कंट्रीज है जहां पे हेल्थ केयर सिस्टम इतना इवॉल्व नहीं है, और कुछ हम बिट्स एंड पीसेस में ऑलरेडी देखते हैं कि लोग डेंटल ट्रीटमेंट कराने आते हैं इंडिया में, और लोग XYZ ट्रीटमेंट कराने टर्की जाते हैं। सो इसको आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखती हैं आने वाले टाइम में? देखिए, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी एक बहुत बड़ा सपना है, एंड ही ऑलवेज वांटेड कि हम हेल्थ केयर को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के रूप में प्रमोट करें। और उसमें हम सिर्फ मॉडर्न साइंस ही नहीं, हम लोग उसमें आयुर्वेदा एंड अदर यूनानी एंड ऑल सबको इंक्लूड करके चले। तो मैं चूंकि फिक्की में भी हूँ और फिक्की के मेडिकल वैल्यू ट्रैवल में चेयर हूँ, सेम टाइम आई वाज इन SCPC एंड ऑल हेल्थ केयर कम्स अंडर दैट। तो ये बहुत आसान है। अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है बताने का कि जी थाईलैंड हमारा बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, या सिंगापुर हमारा कॉम्पिटिटर है। हमारा कॉम्पिटिटर वो लोग इसलिए हैं क्योंकि मैं मानती हूं कि भाई जिसके पास बहुत पैसा है वो वहां चला जाता है, बट अगर कोई यहां आता है तो होलिस्टिक हीलिंग सिर्फ हिंदुस्तान के पास है। अभी रेगुलेशन की जरूरत है। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इंडिया कि अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं थी। ये जो बाहर से पेशेंट आया उसको कौन लेगा, कौन अटेंड करेगा, उसको कहाँ जाना है, देयर वाज नथिंग। तो वो क्या होता था, बेचारा वो आया बाहर खड़ा हुआ एयरपोर्ट के, तो वहां बहुत सारे लोग खड़े होते थे, एंड जैसे आप टैक्सी स्टैंड पे कहते हैं ना, हाँ एजेंट्स टाइप के, आइए आइए आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, जहां जिसका मन हुआ वो वहां चला गया। तो देयर वाज नो रेगुलेशन। तो अभी ये जो एजेंट्स थे इन्होंने भी अपनी एसोसिएशन बना ली। सो अब एक सिस्टम है। दूसरा, गवर्नमेंट ने थोड़ा इंटरेस्ट लिया, तो हम लोगों ने अब एक पोर्टल भी बनाया है जो अभी फिक्की रन करेगा। उसमें सिर्फ NABH एक्रीडेटेड अस्पताल आएंगे, फुल्ली एक्रीडेटेड, क्योंकि NABH के भी कई हैं सर्टिफिकेशन एंड, हाँ, तो फुल्ली एक्रीडेटेड अस्पताल आएंगे। और जो लाने वाले हैं, जो एसोसिएशन है, वो भी एक्रीडेटेड होंगे। आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। जब उनका एक्रीडिटेशन के लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, तो आई वॉज पार्ट ऑफ NABH। वो जो रेगुलेशन जब बन जाएगा तो जो आपके देश में आया उसको एक सही अस्पताल मिलेगा, उसका सही इलाज होगा। he will go back to his country with good memories, so he will send patient with your country। like हमारे हॉस्पिटल में जो भी जा रहा है यहाँ से ठीक होके, बिकॉज वी आर ऑल्सो डूइंग मेडिकल वैल्यू ट्रेवल। हमारे पास बांग्लादेश से पेशेंट आते हैं, साउथ सुडान से पेशेंट आते हैं, अफ्रीका से पेशेंट आते हैं, समटाइम्स ऑस्ट्रिया तक से आते हैं।
and sometimes I really feel कि they are happy here. So एक एक्सपीरियंस होता है। पहले क्या होता था, आपने अभी भी पढ़ते होंगे कभी, कोई बाहर से बेचारा टूरिस्ट आया है, उसके साथ किसी ने कोई गलत व्यवहार करा, कभी कोई पर्स छीन लिया, कभी किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया। ये इमेज सुधारने की जरूरत है, क्योंकि हम अफोर्डेबल हैं, हम बेस्ट क्वालिटी केयर दे रहे हैं, हम उनको एक फीलिंग दे रहे हैं होम अवे फ्रॉम होम, क्योंकि हमारा अतिथि देवो भव में एक विश्वास होता है। सेम टाइम इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, तो हम उनको ना टूरिज्म भी देते हैं। जैसे मेरे हॉस्पिटल में अगर कोई बाहर का पेशेंट आया, एडमिट हुआ, बिकॉज वो तो महीनों के लिए सर्जरी हो रही है, तो हम उनका जो अटेंडेंट होते हैं उनको हम घूमने भेज देते हैं कि भाई हमारी गाड़ी लेके गई, जयपुर घुमा लाई, आगरा घुमा लाई। दे आर गेटिंग मोर नॉलेज अबाउट इंडिया। तो ये सारी चीजें हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है, जिसमें हम उनको मेडिटेशन करा रहे हैं, योगा के बारे में बता रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाला जो समय है, यानी बहुत दूर की बात नहीं कर रही मैं आपसे, आने वाले सिर्फ 2 सालों में आप देखेंगे कि इंडिया विल बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ एवरी कंट्री एज ए मेडिकल वैल्यू ट्रेवल। और ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जितने दूसरी कंट्रीज हैं, सो आप मानती हैं कि हमारा हेल्थ केयर स्टैंडर्ड उनसे एट पार है या उनसे बेटर है? बहुत बहुत बेटर है, क्योंकि बांग्लादेश से जो लोग मेरे पास आते हैं या दूसरी कंट्रीज से, बहुत सी जगहों से ऐसे लोग आते हैं जो जिनके पास MRI तक नहीं होता। तो बहुत सी कंट्रीज ऐसी जिनमें सिर्फ MRI कराने वो पहले इंडिया आते हैं, पूरी फ्लाइट बुक होती है, उसमें सिर्फ MRI के पेशेंट होते हैं। इंडिया आते हैं, MRI कराते हैं, वापस जाते हैं, फिर उस MRI की रिपोर्ट पे डॉक्टर्स उन्हें बुलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जगहों का क्या हाल है। मैम, जैसे जब मैं आपकी स्टोरी when I was going through your story, you mentioned something very unique कि आपने सोचा कुछ का, आप एक अलग ट्रेजेक्टरी में जाना चाहती थी, बट लाइफ टुक यू समवेयर एल्स। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इसी दौरान आपके हाथों से शायद काफी लोगों का भला होना लिखा था, कि आप हेल्थ केयर जैसे नोबल प्रोफेशन में आई, और दैट टू नॉट एट अ स्मॉल स्केल, बट अब आप इस स्केल पे हो कि 400-500 बेड्स आपके ऑलरेडी हैं, यू आर सेटिंग अप मोर देन 1200 बेड्स। आई ऑल्सो रेड दैट यू आर, बिकॉज आपने हाथों से भला भी होना लिखा था, बिजनेस भी अच्छा है, बट यू आर ऑल्सो गिविंग बैक टू द सोसाइटी इन अ लॉट ऑफ वेज। आपने टीबी एलिमिनेशन के लिए काम किया है, आपने उत्तराखंड और दूसरे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए काम किया है। वी वुड लव टू नो मोर अबाउट सच इनिशिएटिव्स दैट यू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन। देखिए, एक शब्द है कि समाज ने हमको बहुत दिया, बिकॉज हम लोग फर्स्ट जनरेशन हैं जिन्होंने कुछ बिजनेस में, इसे हमने शुरू तो बिजनेस के पर्पज से नहीं किया था, लेकिन जो भी कहिए, एक हमें एक मौका मिला कि हम एक जगह बना पाए, अपनी लोगों की मदद कर पाए। तो अब वो समय आया कि हमें ऐसा लगा, देखिए मेरे पेरेंट्स जो दोनों जिनकी डेथ हुई, बिकॉज देयर वाज अ वेरी लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। कुछ अकल नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि भाई हार्ट का दर्द है तो सीधे हार्ट पे डॉक्टर के पास ही जाओ, ऐसा कुछ समझ भी नहीं था उस जमाने में। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अब वो कर सकते हैं जिस मुश्किलों के दौर से हम गुजरे और लोग ना गुजरे। अब जैसे मैं स्पेशल ओलंपिक भारत में के लिए काम करती हूँ, जिसमें मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, उन बच्चों को हम लोग, ये इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल ओलंपिक, हम भारत इसलिए जोड़ लेते हैं बिकॉज हमारा भारत हिंदुस्तान है, वरना ये इंटरनेशनली सारे देश में होती है। ये सभी जगह मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं, लो IQ बच्चे होते हैं, उनको हम लोग खेलों के माध्यम से कुछ तो उनकी लाइफ सुधरती है, दूसरा जैसे उनको इंसेंटिव मिलता है, और उनसे ज्यादा मुझे लगता है उनके पेरेंट्स को मिलता है, क्योंकि वो बच्चा तो, और ये एक ऐसी इकलौती संस्था है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म था। लास्ट ईयर मैं बर्लिन गई थी इन बच्चों को लेके, कि जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया सबको वो पहनाया जाता है मेडल। तो जो जीतते हैं उनको तो हम लोग पहना देते हैं वही गोल्ड और ब्रॉन्ज और सिल्वर, लेकिन जो बच्चे नहीं भी जीतते हैं उनको भी हम लोग रिबन जरूर पहनाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि भाई ये क्यों स्टेज पे चले गए, हम क्यों नहीं गए। तो इक्वलिटी बनाने के लिए, और फिर जब वो लौट के आए बच्चे, तो सरकार की ओर से उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। अगर एक गोल्ड मेडल है तो 4 लाख रुपए, तो अगर किसी ने 4 जीते तो आप सोचिए 16 लाख रुपए उस फैमिली के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरीके के इनिशिएटिव करके ना, उन छोटे बच्चों को, उन बच्चों को खेलते देखना,
उनके पेरेंट्स की अभी हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो कहीं जा नहीं पाते बिकॉज बच्चे इस लायक नहीं होते कि वो शादी में ले जाएं या कहीं भी जा पाए. वी आर ट्राइंग टू मेक सम हॉस्टल काइंड ऑफ फैसिलिटी फॉर दोज किड्स, जहां पे हम उन बच्चों को, जैसे डे केयर टाइप होता है कि अगर पेरेंट्स कहीं गए हैं तो वी कैन लुक आफ्टर देम और पेरेंट्स कम से कम 2-3 दिन आराम से रह सकें. सेम टाइम हम उनके लिवलीहुड के लिए भी प्लान कर रहे हैं कि हम उन्हें किसी स्किल में ट्रेन कर दें, नॉट ओनली गेम्स, क्योंकि गेम्स हमेशा नहीं खेल सकता बच्चा. तो जब वो बड़ा हो तो हम लोग सोच रहे हैं कि उनको कुछ पेपर प्लेट वगैरह बनाना सिखाएं, कुछ और चीजें सिखा दें ताकि वो आगे अपना जीवन चला सके. प्रॉब्लम ये होती है जिनको ऐसे बच्चे होते हैं वो ज्यादातर सेकंड चाइल्ड नहीं करते कि अब हम इसको देखेंगे या दूसरा बच्चा कैसे करें. तो उन बच्चों के पेरेंट्स के बाद कोई लुक आफ्टर करने के लिए नहीं है, तो उनके लिए काम करना एक आपको आत्मा की शांति भी एक शब्द है जिसकी तलाश में से मैं दुनिया घूम रही है, वो मिलती है आपको वहां जाके. टीबी एलिमिनेशन में भी अच्छा लगता है. हमारा सेंटर स्टेप सेंटर घोषित किया गया जो नॉर्थ इंडिया का पहला सेंटर है जिसमें हम लोग एंड टू एंड उनको पूरी फैसिलिटी देते हैं. तो जितने लोग टीबी से मुक्त हो गए वो फैमिली, देखिए एक आदमी अगर टीबी रखता है ओपन टीबी तो पूरी फैमिली अफेक्टेड होती है. प्लस अभी जो इनफर्टिलिटी आप देख रहे हैं इतना ज्यादा हो रहा है उसमें भी टीबी का बहुत बड़ा रोल है. लड़की को अगर यूट्रस टीबी है और पता ही नहीं चला उसे, क्योंकि खांसी तो आती है तो सबको पता चल जाता है कि हो सकता है तुम्हें टीबी हो, लेकिन अगर यूट्रस में टीबी है और आपको पता ही नहीं है, बस आप कंसीव नहीं कर रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू मेक अवेयरनेस. उसके लिए हम लोग कैंप्स लगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये भी एक रीजन हो सकता है आपकी इनफर्टिलिटी का. ये सब चीजें करके अच्छा लगता है. बस एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे बात करके आता है दिमाग में कि हेल्थ केयर में भी क्या हो रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंड्स फ्लोइंग इन, देयर इज अ lot of hospitals are getting professionalized either through their next generation or through a professional management. और ये ट्रेंड ड्राइव कर रहा है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट. नेचुरली सेक्टर में बाढ़ सी आई हुई है बिकॉज रियल अच्छे एसेट्स कम है. जो बड़े चेन्स हैं वो और बड़े हुए जा रहे हैं और एक बड़े चेन के लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट काफी ज्यादा है कंपेयर टू एक्विजिशन कॉस्ट, क्योंकि एक लेट्स से 1 करोड़ पर बेड में एक एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल अवेलेबल है जिसकी उस रीजन में काफी अच्छा नाम है, अच्छी डिमांड है. वर्सेस अगर आप एक नया हॉस्पिटल बनाने जाते हैं तो पहले तो द कॉस्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन, अप्रूवल्स, दैट्स नॉट ट्रिवियल. 4 साल का पीरियड और उसके बाद आप उससे ज्यादा ही लगाएंगे. तो इससे काफी एक ट्रेंड फ्यूल हो रहा है दैट लॉट ऑफ प्रमोटर रन बिजनेसेस, गुड बिजनेसेस आर गेटिंग एक्वायर्ड बाय लार्ज private equity chains or large hospital chains. The trend is, and it's a fantastic trend for promoters and their families who have invested decades into building their businesses, because एक टाइम आता है कि decades लगाने के बाद एक पूरी फैमिली के लिए और एक पूरे बिजनेस के लिए एक लिक्विडिटी इवेंट क्रिएट होता है. बट ये ट्रेंड को जो ड्राइव कर रहा है, जैसे आई वाज गिविंग एन एग्जांपल कि आई वाज स्पीकिंग टू दिस प्रमोटर रन हॉस्पिटल बिजनेस जो है गुजरात बेस्ड, में उनके प्रमोटर से बात कर रहा था. तो ही जस्ट सोल्ड और कंक्लूडेड अ डील फॉर हिज हॉस्पिटल. एंड उनके केस में था कि नेक्स्ट जनरेशन जो फैमिली है उनको हेल्थ केयर चलाने में बहुत इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज हेल्थ केयर इज अ इनक्रेडिबली टफ बिजनेस टू रन इन इंडिया. लो मार्जिन्स, रेगुलेटेड है, पेशेंट सेफ्टी, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस एंड देयर आर मच easier ways to make money in healthcare, especially अगर आप कैपिटल से शुरू कर रहे हो. आप 1000 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में लगा के पैसा बना सकते हो, वर्सेस आप 1000 करोड़ रुपए लगा के अगर एक हॉस्पिटल बना रहे हो तो आपको काफी टाइम एनर्जी लगानी पड़ती है. तो जब आप whenever that stage will come when you will pass on the baton to your next generation, how are you doing their succession planning कि आपकी जनरेशन के बाद इसको आगे कौन ले जाएगा? देखिए, हम लोग अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड अभी तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में शायद अगर आप देखें तो उंगलियों पे गिन लीजिए उतने अस्पताल हैं जो लोग खुद चला रहे हैं, बाकी तो सारे ही बिक चुके हैं. सब में मैनेजमेंट आ गया, प्राइवेट इक्विटी आ गई. बट आई फील कि हम अपना सिस्टम, जैसे अभी भी अगर आप मेरे को देखेंगे तो हाफ ऑफ द टाइम आई एम आउट फ्रॉम माई हॉस्पिटल, मैं कहीं बाहर होती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम इतना मैंने स्ट्रांग रखा है. सबसे बड़ी बात है कि उस जगह का जो भी डिपार्टमेंट इंचार्ज है वो उसकी ओनरशिप है. वी आर प्रोवाइडर फॉर देम, वॉट एवर दे वॉन्ट, आई एम ऑलवेज देयर टू प्रोवाइड देम.
एंड दूसरी चीज कि पेशेंट सेफ्टी कहीं कंप्रोमाइज नहीं हो। बाकी चीजें लोग प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे हैं। सो आई वांट कि जब भी मैं अपनी सेकेंड जनरेशन को दूंगी तो आई विल मेक अ सिस्टम दैट ही शुड नॉट फील कि भाई मेरे को, हम अभी भी सुनते हैं फोन, मेरा फोन 24/7 ऑन रहता है, लेकिन शायद बच्चे नहीं सुनेंगे उतनी फोन कि हम हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश खुद ही करते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप सिस्टम इतने वेल प्लेस्ड कर दें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये एक लिगेसी है, क्योंकि यशोदा इज नेम ऑफ माय मदर इन लॉ, तो आई वांट कि ये नाम ऐसा ही चलता रहे और इसमें काम भी ऐसा ही चलता रहे जैसे हम लोग करते हैं कि कहीं पे भी चैरिटी की जरूरत है तो वी नीड नॉट टू थिंक अगेन कि हमें किससे पूछना है। अगर आप देखें जहां पे बड़े सारे ग्रुप इन्वॉल्व है वहां थर्मामीटर भी मीटिंग में डिसाइड होता है कि हम लेंगे कि थर्मामीटर नहीं लेंगे, हम ईसीजी मशीन लेंगे या नहीं लेंगे। यहाँ पे हमें जो भी लेना है वी कैन टेक डिसीजन देन एंड देयर। सो आई वांट दिस कल्चर हैज टू बी देयर, बट यू नो भविष्य के गर्त में क्या है किसी को पता नहीं है। So long as you are in charge, you would prefer a culture where you don't have an investor or a board to answer to. Yes. That's very interesting. Ma'am, I have read about your leadership style. Famously, there is something written called open door policy that you have. And we were discussing at the beginning of the podcast that running a healthcare organization is basically about dealing with thousands of people, not just not just patients, but thousands of employees as well. So, would love to understand what's your leadership style. When you hire people, what do you look for? Hire करने के बाद, how do you keep them motivated? How do you manage people? How do you manage some of the day-to-day interpersonal challenges that comes while managing such a large workforce? So best thing क्या होती है, what I feel, एक तो मेरी ओपन डोर पॉलिसी इसलिए बहुत जरूरी है। मेरे पास अगर मेरा 4th क्लास यानी जो सफाई कर्मचारी है वो भी आके अपनी प्रॉब्लम बता सकता है कि मेरा सुपरवाइजर मुझे परेशान कर रहा है। सेम टाइम जो सीनियर्स हैं, एट ए टाइम अगर मेरी जो ऑफिस टेबल है उसके सामने 4 चेयर्स हैं, तो उन 4 चेयर्स पे वो 4 लोग एक साथ बैठते हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल भी नापसंद करते होते हैं। बट मैं चूंकि सबको प्यार करती हूं तो उन सबको बांधे रखना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि एवरीबडी नोज कि ही इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ ही डजंट लाइक दिस पर्सन तो वो क्यों। अक्सर ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट सभी जगह होते हैं, आप उनको बुलाइए और समझाइए। और मुझे लगता नहीं है कभी भी ऐसा कि बातचीत से कोई मसला हल नहीं हो सकता, हमेशा हल होता है। प्लस कभी किसी को मुझे ऐसा लगता है किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी एक व्यक्ति पे डिपेंड मत करिए कि आपने एक आदमी को कुछ भी बना दिया, चलिए मैं कहती सीईओ बना दिया एंड देन ही इज द बॉस एंड बाकी किसी की नहीं सुनी जा रही है। एवरीबडी इज टीचिंग यू समथिंग। हम कभी कभी क्या करते हैं, एक सबसे वो मांगते हैं कि आप हमें ओपीडी सर्विसेज में सुधार लाना है, तो आप सब अपना मुझे सजेशन दीजिए। तो सब लोग कुछ कुछ भेजते हैं और वो भी एक बॉक्स में डाला जाता है, तो बेस्ट सजेशन को अवार्ड मिलेगा। तो सब लोग अपनी ओर से बहुत लंबा लंबा अच्छा लिखते हैं, लेकिन कभी 2 लाइन भी ऐसी होती है ना जो आपको एक्चुअली आपके सिस्टम को इंप्रूव करने में मदद करती है। तो इतनी सारी वर्कफोर्स को मैनेज करने में सबसे पहले मैं कहती हूँ, आजकल जो ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत चर्चा हो रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन एनीथिंग। इफ योर पीपल आर कनेक्टेड विद यू, मेरे लोग मेरे साथ शुरू से हैं, मतलब फ्रॉम डे 1 जिन्होंने इनॉग्रेशन किया था वो आज भी मेरे साथ हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो हमने साथ में जर्नी निकाली है, तो दे आर क्लोज टू मी। वो लोग जब नए लोग ज्वाइन करते हैं उनको वो ट्रेन करते हैं। तो जैसे अभी हम जो नया सेटअप बना रहे हैं उसके लिए लोग हम अभी से हायर कर रहे हैं ताकि वो हमारा कल्चर समझें। जैसे मैं कभी किसी भी पेशेंट के रूम में जाती हूँ, क्योंकि सिर्फ पेशेंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ना, उसका अटेंडेंट भी उतनी इंपॉर्टेंट है, उसकी नर्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो समटाइम्स मैं कुछ दिन पहले ना नाइट्स किया करती थी, फुल नाइट आई वाज इन द हॉस्पिटल, बिकॉज आपने ज्यादातर सुना होगा अस्पतालों में रात में बड़ी समस्याएं होती हैं। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई वो प्रॉब्लम, क्या पता मेरी नर्स को भी कुछ प्रॉब्लम होती हो रात में, क्या पता मेरे हाउसकीपर को भी होती हो। तो आई हैव डन नाइट्स फॉर मैनी मंथ्स कि भाई नाइट में पूरी रात मैं रहूंगी। उससे क्या होता है, आप पिक कर लेते हैं क्या क्या इश्यूज हैं, वो आप रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, चूंकि मैं नाइट में हूं
तो स्टाफ इज वेरी मच परेशान कि अब मैडम है तो अब तो बेचारा 10 मिनट बैठ भी नहीं पा रहा है। तो मैंने फिर उसके लिए ना मैं अपने हाथों से चाय बनाने लगी, उनके लिए अच्छे स्नैक्स बनाने लगी। तो दे स्टार्टेड कि भाई मैडम आएंगी, दे स्टार्टेड वेटिंग फॉर मी। और उस पूरे दौरान मुझे ये समझ में आया कि हमें रात में क्या क्या चीजों को सुधार लेना चाहिए जिससे ना पेशेंट परेशान हो और ना ही हमारा स्टाफ परेशान हो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यू हैव टू गिव ईयर टू द पेशेंट एज वेल एज योर स्टाफ ऑल्सो। कभी भी किसी एक पक्ष की कभी बात नहीं सुनती हूँ। हमारे यहाँ हमेशा पेशेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वो जो कह रहा है हम उसी समय रिजॉल्व करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि आपका स्टाफ बहुत खराब है, उसने मेरे साथ ये किया, तो मैं आई कैन नॉट टेक डिसीजन देन एंड देयर कि चलो फायर, ऐसा नहीं होता ना। वो मेरे साथ महीनों से काम कर रहा है, तो लिसन टू दैट पर्सन ऑल्सो। ये चीजें होने से क्या होता है ना, पेशेंट स्टाफ को पता होता है कि मैडम या मेरा मैनेजमेंट मेरे साथ है। सो जस्ट टू टेल देम, एंड नॉट ओनली इस वजह से उनकी घरेलू परेशानियां हैं, किसी को पैसों की जरूरत है, किसी के फादर बीमार हैं, वॉट एवर, किसी की पर्सनल जिंदगी का ध्यान रखोगे तो वो हमेशा आपका ध्यान रखेगा। Amazing, man. This was really interesting talking to you. I think your story is a story of grit, is a story of customer centricity, how to build a legacy and a brand over decades. And I'm sure a lot of our viewers, especially girls watching this podcast, will be super inspired by what you have achieved. I have just one last question for you. And when I was listening to the beginning of your story, I had this in mind. In the last 2 or 3 decades, you have been playing 2 roles simultaneously, and both roles are super hard and super challenging. One role is, of course, the CEO and director of one of the most reputed healthcare brand in North India. But the other role is of a mother. What role was more challenging? What role was more difficult? I think to be a mother is more challenging and difficult because you are making a person for the society, and every mother is making and giving a person to the society. तो जब बाकी लोग जो आपके पास आए हैं वो बने बनाए आए हैं, you just need to manage them. But when you are raising your child, you are making a person for the society जो जाके वैल्यू ऐड करेगा. So it was really challenging. and जब तक मेरा बेटा छोटा था मेरी प्रायोरिटी हमेशा वही थी. I was always keeping my schedule around him. So luckily touch wood उसके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए. Like he wants to start one hospital and stay place for the stray, not only stray dog and cows, for every animal. तो अभी हम नया प्रोजेक्ट वो वेटनरी हॉस्पिटल प्लस प्रॉपर एक उनके लिए ना शेल्टर होम विदाउट एनी कॉस्ट. ही वांट्स टू रन अ फ्यू एम्बुलेंसेस जिसमें नंबर हो हमारा कि कहीं पे कोई भी कुत्ता कोई भी जानवर हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, वो कहता है कि सारे लोगों में जान है. दे आर ऑल्सो फीलिंग सेम पेन. वाई वी आर ऑल द टाइम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग. तो मुझे इस बात की खुशी है कि वो इस तरह की बातें सोचता है. बस इसलिए मैं कहूंगी माँ बनना और बच्चे को बड़ा करना दुनिया का सबसे चैलेंजिंग जॉब है. Thank you so much for your time, man. It was incredible talking to you. Thank you so much. Thank you, Vivek, for calling me here, and I must appreciate that आपने हेल्थ केयर के हर अनछुए पहलू को छुआ है आज. और मुझे लगता है कि ऐसे सारे लोगों के पॉडकास्ट जब सब लोग एक दूसरे के भी सुनेंगे तो सबको बहुत फायदा होगा. थैंक यू.